সো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের কাছে একটা নিয়ে এসেছি আকর্ষণীয় ভিডিও। সেটি হচ্ছে ভিক্টোরিয়ার সাউন্ড অ্যান্ড লাইট মিউজিক। আপনারা অনেকেই ভিক্টোরিয়া এসছেন, অনেকে ভিক্টোরিয়া দেখেছেন এবং জানেন যে বিকেল 5টার পরে ভিক্টোরিয়া বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু 5টার পরে গিয়ে 6:30 থেকে শুরু হয় সাউন্ড অ্যান্ড লাইট মিউজিক। কিন্তু এটা আপনারা অনেকেই জানেন না। অনেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ভিক্টোরিয়াতে থাকেন এবং ব্যাক করে বাড়ি চলে আসেন, কিন্তু অনেকে জানে না যে ভিক্টোরিয়া 5টার পরে গিয়ে 6:30 থেকে শুরু হয় ভিক্টোরিয়া সাউন্ড অ্যান্ড লাইট মিউজিক। তো আজকে আমি এটাই তোমাদেরকে দেখাবো, কখন হয়, কোন টাইমে হয়, টিকিট কত, এ সব কিছু আমি ডিটেলস তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা অবশ্যই কিন্তু পুরো ভিডিওটা দেখবে, একদম স্কিপ করবে না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। কেমন? বাই বাই, চলো। দেখো বন্ধুরা, আমি এখানে টিকিটের মূল্য তুলে ধরেছি। প্রতিজনের টিকিটের মূল্য মাত্র 100 টাকা। আর কী বারে কোন ভাষায় দেখানো হয় সেটাও এখানে তুলে ধরেছি। মঙ্গলবার, বুধবার এবং শনিবার বাংলা ভাষায় দেখানো হয়, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার হিন্দি ভাষায় দেখানো হয়, আর বুধবার অনলি বুধবারে ইংরাজি ভাষায় দেখানো হয়। দেখো বন্ধুরা, টিকিট কোথা থেকে কাটতে হয় আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কারণ আমরা দুটো টিকিট কাটবো কাউন্টার থেকে, আমার একটা আর তোমাদের বৌদিমণির একটা। চলো, এই কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে হয়। আমি ওনাকে 200 টাকা দিয়েছি দুটো টিকিটের জন্য, তো উনি টাকাটা নিয়ে আমাদের দুটো টিকিট দিল। দেখুন, টিকিটগুলো দেখতে এরকম হবে। টিকিটগুলো দেখতেও খুব সুন্দর এবং সাইজও খুব একটা বড় নয়। মধুবনী অনেক আগে থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিল, তাই আমরা ফার্স্টের দিকে লাইনটা পেয়েছি। দেখুন কতটা লাইন বন্ধুরা, প্রচুর লাইন, প্রচুর লাইন, এরপরে আরও লাইন হবে। তো আমরা টিকিটটা শো করলাম, শো করার পরে আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিল। তো আমরা দেখুন ভেতরে ঢোকার সময়, এই সময়টা ভিক্টোরিয়াটা দেখতে কত সুন্দর লাগে দেখতে। একটু ফলো করুন। এই ফৌজি দিদিটা আমাদেরকে বলল সামনের দিকে টিকিটটা নিয়ে যেতে। তো আমরা সামনের দিকে টিকিটটা নিয়ে যাচ্ছি, কারণ ওখানে নাকি চেয়ার সিস্টেম করা আছে। তো আমরা যত তাড়াতাড়ি যেতে পারবো, তো আমরা তত সামনের দিকে বসতে পারবো, আর সামনের দিকে বসলে আমরা ভালো ভিডিওটা করতে পারবো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তাই আমরা বেশিক্ষণ ভিডিওটা করলাম না, সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং আমরা সামনের দিকে সিট পেয়ে গেলাম। पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं? 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे, और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं? मतलब? 1989 में लगातार 6 महीनों तक एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पर सोते हुए 13 बेघर लोगों का पत्थर से खून करता है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। नहीं 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 नहीं, इतने भयानक किस्से से इतिहास की शुरुआत होगी? मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बंबई। क्या जाता
अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर। अरे याद नहीं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यहीं गठित हुई ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज सुरेंद्रनाथ को सरेंडर नॉट बुलाते थे, और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ, हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है ना? ये सन 1943 से इसी तरह खड़ा है, एकदम सही सलामत। सो तो है, हर रोज लाखों गाड़ियां, बस, ट्रक, रिक्शा इस पर से ही तो गुजरती हैं। फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे ब्रिज में एक भी स्क्रू यानी पेंच नहीं है। इसीलिए तो जिन लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला है वे अक्सर हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन वहां से क्या नजारा मिलता होगा, इमेजिन कर सकती हो? मैं इमेजिन नहीं कर सकती। लगभग 100 सालों से विक्टोरिया मेमोरियल की चोटी पर अपने पंख फैलाए खड़ी हूँ मैं। और ये इमारत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, कभी तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता था। क्या बात करते? अरे हाँ, क्या इसे गाय के गोबर से काला नहीं किया गया था ताकि जापानी उस पर बमबारी न कर सके? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिक नहीं पुती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भूखमरी से तड़प कर मर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति? जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, मौज मस्ती करते थे, इन भूख से बिलखते लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? समाज को बदलने के लिए कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करके हजारों लोगों को उत्कृष्टता और जुनून के साथ प्रेरित किया था इप्टा मूवमेंट ने। 1943 में पड़े अकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़ कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश उस समय भी एक आईपीटीए होती। पूरे बदन पर तेल मलकर 4 घोड़ों वाली गाड़ी पर सवार होकर नदी में स्नान करने के लिए निकलने का एक अलग ही ग्लैमर होता है। अच्छा, दुर्गा पूजा नहीं होती? मगर क्यों? अरे शोभा बाजार के बाबू नवकृष्ण देव ने ही तो मदरसे बनाने के लिए ढेर सारे रुपए दिए थे, सड़कें बनवाई थी, और पूरे देश भर से गायकों संगीतकारों को बुलवाकर बड़े बड़े संगीत सम्मेलन करवाते थे। और उन्होंने न केवल पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में भाग लिया, बल्कि अंग्रेजों की जीत की खुशी में एक शानदार दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया था। अच्छा? उसी के चलते ही तो हमारे कैलेंडर में दुर्गा पूजा को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला। क्या बात करते हो? दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की जिसने बंगाल को अंग्रेजों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल, शायद बंगाल अंग्रेजों के हाथों कभी ना आता अगर 1756 में सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना लेकर मुझ पर आक्रमण न करता। अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की जमकर धुनाई ना करता तो अंग्रेज इतनी जल्दबाजी में एक नवाब के विरुद्ध जंग में कभी ना उतरते। राममोहन राय ने सतीदाह प्रथा बंद जरूर करवाई थी, लेकिन इतना बड़ा काम क्या वो अकेले कर सकते थे यदि लॉर्ड बेंटिंक उनकी सहायता ना करते? सो तो ठीक। क्या माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य का रुख बदल सकते
अगर उन पर मिल्टन का प्रभाव न पड़ता, क्या बंकिम चंद्र बंगला में पहला उपन्यास लिख पाते अगर उन्होंने वॉल्टर स्कॉट न पढ़ा होता? बिल्कुल सही। तुम कैसे भूल गए कि शहीद खुदीराम बोस के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा करने के लिए हजारों लोगों ने तुम्हारी सड़कों पर लाइन लगाई थी। तुम्हारे राइटर्स बिल्डिंग के अत्याचारी ब्रिटिश अफसर को गोली मारने के बाद विनय बादल दिनेश ने आत्महत्या की थी। और हाँ, तुम्हारे एक प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास, वही जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उन्होंने भी तो अपने सारे यूरोपियन कपड़ों को जलाकर खादी पहनना शुरू कर दिया था। और जिस व्यक्ति को उन्होंने अलीपुर बमबारी मामले में बाइज्जत बरी करवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म अरविंद घोष थे। अरे तुम तो वो शहर हो जहाँ क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गहरे, संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या तुम एक ही शहर से 6 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कल्पना कर सकते हो, और वो भी 5 अलग अलग क्षेत्रों में। 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा विद्या के लिए। 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला सीवी रमन को। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल मिला इकोनॉमिक्स के लिए। और 2019 में अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय को वैश्विक स्तर पर गरीबी कम करने की ओर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी अफवाह या शायद पागलपन था कि गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया। 1995 की एक दोपहर को, याद है तुम्हें? चाहे वो मंदिर के गणेश हो, कैलेंडर के गणेश हो या फिर दीवार पर टंगे गणेश हो, सभी गणेश जी ऐसे दूध पी रहे थे जैसे कि मानो उनका जीवन उसी पर निर्भर हो। सभी दूध लेकर सिर के बल भाग रहे थे कि अपने निकटतम गणेश जी को दूध पिलाया जाए, मानो अगर वे इस मिरेकल को देखने से चूक गए तो उनके पुण्य का जो कोटा है ना, वो कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिरोजियो का फैंटम पंच। तुम उसे जानती हो? 1817 में अंग्रेजों और बंगालियों ने मिलकर एक ऐसा काम किया जो ना किया होता तो शायद बंगाल रेनेसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मगर बंगाल रेनेसा का सोचता हूँ तो वाकई विश्वास नहीं होता। अकेले ठाकुर परिवार को ही देख लो, ऐसा लगता है मानो 10 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के गुण उनके परिवार के एक सदस्य में भर दिए गए हो। कुल सही। सत्यजीत राय ने पूर्व और पश्चिम दोनों को समरूप से मुग्ध किया है, तभी तो 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं और मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि प्रवासियों और निवासियों यानी कि बांगाल और घोटी के बीच का झगड़ा कुछ कड़वा रहा है, खासकर फुटबॉल के मैदान पर और खाने की मेज पर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि घोटी बांगाल दोनों अब पूरी तरह से मिलजुल कर एक हो गए हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि वामपंथी राजनीति उस समय काफी हद तक मेरे डीएनए का अभिन्न अंग बन गई थी, क्योंकि इसने शरणार्थियों को वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। रोटी, कपड़ा और आश्रय के लिए उनके संघर्ष में उनका साथ दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान फिर से शरणार्थी आए, वे अब भी आते रहते हैं। कलकत्ता कभी किसी को वापस नहीं लौटाता। सो तो है ही, और साथ में उन सब को कबाब और बिरयानी भी जरूर चखाता है। कलकत्ता अगर एक और पराजित व्यक्ति को शरण नहीं दी होती तो शायद ये बिरयानी भी यहाँ नहीं मिलती। मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? वाजिद अली शाह, अवध के नवाब।
1856 में अंग्रेजों ने बिना किसी लड़ाई के उन्हें गद्दी से हटाकर निर्वासित कर दिया कलकत्ता में। उन्होंने डेरा डाला मेटिया बुरुज में। धीरे धीरे संस्कृति में, कपड़ों में और खान पान में मेटिया बुरुज छोटा लखनऊ बन गया। इस प्रक्रिया में स्थानीय संगीत और नृत्य भी प्रभावित हुए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित हुए कलकत्ता वालों का खाने का स्वाद और खाना पकाने के बर्तन आदि। अभी कलकत्ता की सड़कों के किनारे जो कबाब और बिरयानी की दुकानें दिखाई देती हैं, उनकी जड़ें उस शर्मनाक निर्वासन के इतिहास से जुड़ी है। जीवन धन का कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कलकत्ता ने सदा शान से ये माना है। लेकिन जब हम 1946 के दंगों को याद करते हैं, तब ये शान शायद फीकी पड़ जाती है। वो भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे जो करीब एक हफ्ते तक चले थे। वाकई शर्म से सिर झुक जाता है। पर हाँ, साथ ही हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि कई हिंदू परिवारों ने उस समय मुसलमानों को आश्रय दिया था और कई मुसलमानों ने अपने हिंदू मित्रों की जान बचाई थी। कलकत्ता हमेशा उसी जज्बे को संजोकर आगे बढ़ता रहा है। खैर वो छोड़ो, विदेशों में जब रविशंकर और अल्लाह रखा मिलकर अविश्वसनीय संगीत रचना करते हैं, जब वीरेंद्र कृष्ण भद्र का महिषासुर मर्दिनी कानों में बजने लगता है मुस्लिम कलाकारों का अलौकिक वादन के साथ, क्या तब उसी जादुई जज्बे का आभास नहीं होता?